Okay, so we are starting with the linearity, and as I said, that you are quite familiar with this property of linearity. That if you have got x1 of n and the z transform of that is calculated as x1 of z, and if you are interested in knowing the z transform of a x1 of n, you don't need to recalculate it. You don't need to put it into the z transform equation again and find the z transform. Rather, you will be multiplying a the constant with the already calculated x1 of z, and you will be getting the z transform of a x1 of n. Similarly, as linearity is basically based on superposition, which is additivity and scaling. So if you have independently got the z transform of x1 of n and x2 of n, and now you are interested in knowing a x1 of n plus b x2 of n, you don't need to put this a x1 of n plus b x2 of n into the z transform equation and get the z transform of this composite signal. Rather, you will be going in the z domain and already calculated x1 of z or x2 of z को आप a और b के साथ multiply करके आप add कर देंगे, which is a very simple operation as compared to putting a x1 of n plus b x2 of n into the equation of z transform और दोबारा calculate करने के बजाय. And one more important thing, that the region of convergence of the composite signal will be equal to, will be in fact the region of convergence of the first signal intersection with region of convergence of the second signal. And in this context, we will be solving these two examples. X of n is equal to cosine omega naught n u of n. And so this is your signal. And using Euler's identity, we can split this cosine omega naught n into 1 over 2 exponential j omega naught n u of n सिग्नल में मौजूद था प्लस 1 over 2 exponential minus j omega naught n u of n. कहाँ से आया ये cos theta जो है that's equal to exponential j theta plus exponential minus j theta divided by 2. So that's the situation. ठीक है, इसी को यूज करते हुए आपने ये x of n आपने cosine omega naught n को स्प्लिट किया है 1 over 2 exponential j omega naught n u of n plus 1 over 2 exponential minus j omega naught n u of n. ठीक, एंड नाउ आपके पास ये पेयर मौजूद है. प्रॉपर्टीज आप कहाँ यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज आप ये वाली यूज कर रहे हैं कि a रेज टू पावर n u of n जो है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 1 over 1 minus a z इनवर्स, वेयर z इज लेसर देन a. ये आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी. ठीक, तो x of z डायरेक्ट हम यहाँ से उठा सकते हैं बाय एज्यूमिंग दैट दिस एक्सपोनेंशियल j ओमेगा नॉट जो है इसको अगर मैं a एज्यूम कर लूं तो ये a रेज टू पावर n बन जाएगा 1 over 2 a रेज टू पावर n u of n. So 1 over 2 is a scaling factor. x of z अगर मैं ले रहा हूं तो that will come as it is, and a raised to power n u of n का क्या होता है 1 over 1 minus a z inverse, and here a is exponential j omega naught, and similarly here 1 over 2 1 over 1 minus exponential minus j omega naught z inverse, and the region of convergence for this is z is greater than 1, for this is z is greater than 1, and the composite signal का जो आपका region of convergence होगा that would be z greater than 1, and the x of z will be 1 over 2 1 over 1 minus exponential j omega naught z inverse plus 1 over 1 minus exponential minus j omega naught z inverse. जी बेटा मजीद मेहरताबा, any questions बेटा? No, sir. No, sir. Okay, great. Now this is the second example. X of n is equal to 2r raised to power n cosine omega n u of n. Similarly, we can split this cosine omega n into this thing. 2r raised to power n उसी तरह से रह गया 1 over 2 exponential j omega n plus 1 over 2 exponential minus j omega n u of n. Now we can mix this because this 2 will be cancelled with these 2's, and r raised to power n exponential j omega n u of n plus r raised to power n exponential minus j omega n u of n. अब हम लिख सकते हैं r exponential j omega raised to power n. Now this time
दिस इज योर ए। अब ये आपका ए बन गया है, ठीक है, ये अब आपका ए बन गया है। तो अगेन इट्स इन द फॉर्म ऑफ a raised to power n u of n, and here it is, suppose it is b raised to power n u of n, ठीक है। तो a raised to power n u of n plus b raised to power n u of n plus b, and 1 over 1 minus r exponential j omega, which is a in this case, z inverse plus 1 over 1 minus r exponential minus j omega z inverse. But the important thing is that in this case, the region of convergence is greater than r. In this case, it is greater than r. And finally, z will be greater than r. The intersection will be z greater than r. Any questions, beta? सर हम लोग यहाँ पर लेस देन वाला केस क्यों नहीं ले रहे? मुझे आपकी बात, आप मजीद बात कर रहे हैं? जी सर। जी, आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? सर जब हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ले रहे हैं एंड पे z इज ग्रेटर देन r मॉड। गुड गुड क्वेश्चन। मेरे ताबा बेटा आप इसका जवाब देंगी? सर क्योंकि हमारे साथ u ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये u ऑफ माइनस n होता तो फिर हम लेस देन का केस लेते। जबरदस्त बेटा, ये आप यहाँ से ले रहे हैं, इस u ऑफ n की वजह से ये चीज मिल रही है आपको। मजीद, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? u ऑफ n है, राइट हैंडेड है, ठीक हो गई बात। तो राइट हैंडेड की वजह से z इज ग्रेटर देन r आया। अगर ये लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस होता, एंटी कॉजल सीक्वेंस होता, तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन z लेसर देन r हो जाना था। ठीक है बच्चा? ठीक हो गया सर। ओके, अच्छा जी। टाइम शिफ्टिंग, again very important property, and you are quite aware of it in a discrete domain as well. So what we are doing, अगर suppose मेरे पास x of n है तो इसका z ट्रांसफॉर्म जो है वो x of z है। अगर मैं अपने इस टाइम डोमेन से सिग्नल को शिफ्ट देता हूं, तो what we were doing in Fourier transform or discrete time Fourier transform, we were getting the Fourier transform as it is, but we were introducing a complex exponential जो है वो उसके अंदर एक ऐड हो रहा था। The similar thing is happening here as well. अगर आपके पास x of n minus b है, आप ये d की शिफ्ट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग x of z because the actual sequence is x of n, x of z आपको मिल रहा है, and the complex exponential जो है वो आपका z raised to power minus b है, and we know that z is r exponential j omega and r exponential j omega minus b। और अगर इसको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो r को आप 1 रखें, तो इनफैक्ट व्हाट यू आर इंट्रोड्यूसिंग एक्सपोनेंशियल माइनस j omega d, and that was the case when we were talking about the properties of discrete time Fourier transform. R is equal to 1 is associated with discrete time Fourier transform. So it's the same thing, कोई फर्क वाली चीज इसके अंदर नहीं है। सपोज अब इसके एक एग्जांपल है कि x of z गिवन है आपको, which is z inverse over 1 minus 1 over 4 z inverse, and it is given that z is greater than 1 over 4. x of n आपको फाइंड आउट करना है। नाउ यू नो 1 over 1 minus 1 over 4 z inverse का रीजन ऑफ अपना टाइम डोमेन सीक्वेंस क्या होगा? इट इज a raised to power n u of n from here. u of n क्यों लिखा है मजीद? क्या वजह है u of n लिखने की? सर राइट साइडेड सिग्नल है। कहाँ से पता चला है? सर u of n पॉजिटिव है। नो, इस सीक्वेंस से कहाँ से पता चला है? आपको तो ये गिवन था, आपको ये गिवन था, ये जो सर्कल के अंदर आपको ब्लैक सर्कल के अंदर चीज नजर आ रही है, आपने यहाँ u of n लिख दिया, क्यों लिखा? जो हमारे पास z मॉड ग्रेटर देन 1/4 है, तो वहां से हमें पता चला कि हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पॉजिटिव है। यहाँ से पता चल रहा है z मॉड इज ग्रेटर देन 1/4। जबरदस्त। तो z ग्रेटर देन 1/4, यहाँ से हमें पता चला कि ये एक राइट हैंडेड सीक्वेंस होगा, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड द रेडियस ऑफ 1/4, सो दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग हियर u of n. अगर ये यहाँ पे z लेसर देन 1/4 होता, तो इन दैट केस यू वुड बी हैविंग u of minus n minus 1 काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो अच्छा, अभी तो हमने ये किया, लेकिन हमारे पास अभी एक टर्म और मौजूद है z इनवर्स, और इस z इनवर्स की वजह से क्या होगा, द z ट्रांसफॉर्म एंड द टाइम डोमेन सीक्वेंस के अंदर एक शिफ्ट आ जाएगी,
और वो शिफ्ट क्या है, एक सैंपल की शिफ्ट है z-1 में। सो जो ओरिजिनल 1/4 रेज टू पावर u of n था, that is now converted into 1/4 n-1 u of n-1. Any questions regarding this beta? सर ये लास्ट लाइन No, दोबारा sir. समझा दें। जी बेटा, क्या बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जो लास्ट लाइन n-1 है ये किस तरह है ये बता दें। ओहो, पहले इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा जी, हमने फाइंड आउट करना है x of n। अच्छा, इसको मैं छोड़ देता हूँ z इनवर्स को। मुझे ये पता है कि 1 - 1/4 z इनवर्स का z ट्रांसफॉर्म क्या है। अगर मेरे पास ये चीज मौजूद है, अगर मेरे पास ये चीज मौजूद है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ ना, a raised to power n u of n, और मुझे पता है कि दिस इज अ राइट हैंडेड सीक्वेंस। तो इस बात का मतलब है व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी राइटिंग 1/4 raised to power n u of n। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। ना सर। अच्छा, अब हमारे पास ये टर्म एक मौजूद है z इनवर्स की। एक्चुअली मुझे जो चाहिए वो z इनवर्स का चाहिए। सो z इनवर्स ओवर 1 - 1/4 z इनवर्स क्या हो जाएगा? We know from the property that if this is the case, आप टाइम डोमेन सीक्वेंस के अंदर उतनी शिफ्ट दे देंगे। यहाँ पे z माइनस डी, यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है, दैट इज z-1। तो इस बात का मतलब है टाइम डोमेन सीक्वेंस में कितने की शिफ्ट जाएगी, जहां जहां पे n है वहां n-1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 raised to power n-1 u of n-1। एग्रीड? यस सर। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में अब एक और चीज है, मल्टीप्लिकेशन बाय एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। तो ये सिचुएशन क्या है कि सपोज आपके पास नाउ ये जो चीज है, ये जो z नॉट आपको नजर आ रहा है, इट्स सम कांस्टेंट, ठीक है, यानी जैसे a रेज टू पावर n था, इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है a रेज टू पावर n x ऑफ n, तो आप अपना z ट्रांसफॉर्म इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म था x ऑफ z, तो a रेज टू पावर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, the z will be replaced with z over a and the region of convergence will be multiplied with this a। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल की है and that was, ये एग्जांपल आपने की थी a रेज टू पावर n वाली, ये वाली कर लें या ये वाली कर लें, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स को हमने लीनियरिटी से सॉल्व किया था। अब देखिए उसी एग्जांपल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से। अब जरा देखिए, x of n is equal to 2a raised to power n cosine omega naught n u of n। 2a raised to power n, अगेन ऑयलर्स आइडेंटिटी यूज की है, 1/2 एक्सपोनेंशियल j omega naught n प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस j omega naught n। अब आपके पास क्या है, 2 is cancelled, so a raised to power n exponential j omega naught n u of n plus a of n a raised to power n exponential minus j omega naught n u of n। अच्छा, अब अगर तो मैं a raised to power n ना होता, इस केस में मेरे पास क्या सिचुएशन थी, a raised to power n u of n या exponential j omega naught n को अगर मैं करता हूँ, मेरे पास ये a of n ना होता तो क्या सिचुएशन होती, यानी अगर मेरे पास ये सिचुएशन होती, exponential j omega naught n u of n, इसका z ट्रांसफॉर्म में क्या लिखता रहा हूं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल j ओमेगा नॉट z इनवर्स। यही है बच्चा। अब इस प्रॉपर्टी को भी देखना है। अब अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे a रेज टू पावर भी आ गया, a भी साथ आ गया, अगर a मेरा साथ आ गया है तो z विल बी रिप्लेस्ड विद z ओवर a। तो क्या चीज हो जाएगी यहाँ पे z ओवर a में, वो हो जाएगा a z इनवर्स हो जाएगा। and it's the same answer which you have got obtained earlier, linearity के थ्रू आपने जब सॉल्व किया था। now you are solving it through exponential sequence, and in this case the region of convergence is क्या हो जाएगा, ROC multiplied by a। इसका ROC क्या था, अगर मैं इसका ROC क्या था, z was greater than
1 1, और जब मैं a को शामिल करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड इसके साथ a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, which is the answer, z is greater than a, and you have obtained the same answer using linearity property. So whenever this is the situation that some constant raised to power n x of n, अगर आपके पास z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, all you have to do, आपके पास जो previously calculated आपका x of z रखा हुआ है, all you will be doing, you will be replacing z with z over that constant, and the region of convergence will be changed as ROC of the previous signal multiplied by that constant. Questions, please. सर ये जो आपने राइट साइड पर अभी लिखा हुआ ए ई ओवर जे ओमेगा नॉट ऑफ एन, हाँ तो हाँ, इससे क्या डिफरेंस आया है इनिशियल इक्वेशन में? कौन सा डिफरेंस क्या है? सर ये जो राइट साइड पे आपने वो ये वाला, लिखी है ना सर? दिस वन? जी सर, जी सर। हाँ हाँ, तो इसमें क्या क्वेश्चन आपका क्या है, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने ए इंक्लूड किया ना सर, तो उसकी वजह से जो आपने दूसरा स्टेप किया उसमें क्या आपने एडिशनल चीज़ की है? बेटा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रीवियसली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे लिनियरिटी के साथ, ठीक। अभी हम सपोज मेरे पास अगर ये सिचुएशन है एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा नॉट एन यू ऑफ एन, और इसका मुझे जी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो, तो इट इज ए रेज टू पावर एन यू ऑफ एन, और आप कहेंगे 1/1 माइनस ए जी इनवर्स, इन दिस केस ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा नॉट, ऐसा ही है ना? यस सर। और इस केस में z इज ग्रेटर देन 1, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। नहीं है। अब इशू ये है कि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो है a रेज टू पावर n, इसका मतलब है यहाँ पे a मौजूद है, ठीक है। अब a मौजूद है तो इस बात का मतलब है हम इसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, z will be replaced with z over a, so this is what, this is in fact, अगर मैं इसको z इनवर्स ना लिखूं तो एक्सपोनेंशियल j ओमेगा नॉट ओवर z है ना, यस सर। तो z ओवर a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a ओवर z, तो इनफैक्ट ये चीज बन जाएगी a z इनवर्स। ये इट्स अ सिंपल एग्जांपल, लेकिन वो असल में ये a z इनवर्स हो जाएगा, और इसको काट दें आप, एंड इन दिस केस आपके पास वही आंसर आ गया जो आप पहले ले चुके थे। अगर आप नॉर्मल a एक्सपोनेंशियल j ओमेगा नॉट n करते तब भी आपको यही मिलना था, but now we are using this property, and initially the region of convergence was z greater than 1. Now using this property we are saying the new region of convergence will be the old region of convergence which was greater than 1 multiplied with this a, so that's why we are saying z is greater than a now. यस सर। ठीक होगी बात? यस सर। ओके, अच्छा, ये एक और प्रॉपर्टी है, एंड द प्रॉपर्टी सेज दैट इफ दिस इज द सिचुएशन, हाँ इनफैक्ट दैट्स ddz है, ddx नहीं है, ddz है। अच्छा, अगर इस तरह की सिचुएशन है आपके पास, x ऑफ n का तो आपने रखा हुआ है x ऑफ z है, लेकिन अब आपके पास सिचुएशन ये आ गई कि n साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दैट केस यू डोंट नीड टू पुट इट n x of n z raised to power minus n is equal to minus infinity to infinity and solve this. You don't need to do it. There is a property as differentiation of x of z. What you will be doing, आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है x of z, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे with respect to z, and you will be multiplying it with minus z, and the region of convergence is not changing. ठीक। अच्छा, अब आपके पास एक एग्जांपल आती है x of n, ये आपके पास प्रीवियसली मौजूद था a रेज टू पावर n u of n, और उसका आपको z ट्रांसफॉर्म पता है, दैट इज 1/1 माइनस a z इनवर्स, आपको उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पता है, z इज ग्रेटर देन a बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट u of n, द राइट हैंडेड सीक्वेंस। अब हुआ ये कि n जो है वो आपके साथ आ गया, एंड नाउ वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी टू सॉल्व इट, because we cannot use linearity
we cannot use time delay in this case. So this is a property which we will be using to facilitate ourselves to solve these kind of problems. So x of z क्या हो जाएगा? Minus z d dz of जो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड मौजूद था 1/1 minus a z इनवर्स. So u over v केस है, ये आपके पास माइनस z उसी तरह से आ जाएगा, एंड u over v केस अगर आप यूज करें तो v स्क्वायर आ जाएगा 1 minus a z इनवर्स होल स्क्वायर, एंड देन जो आपका न्यूमरेटर है वहां पे आपके पास v du minus u dv आप अगर आप करें तो आपको मिल जाएगा माइनस a over z square and minus z, and the answer will be a z inverse over 1 minus a z inverse whole square, and z is greater than a because region of convergence is the same जो कि आपका x of n का मौजूद था. Questions please. मेहताबा, मजीद. No, sir. No question, sir. Okay, good. Achha. Now, conjugation of a complex sequence. Again, you have seen it in your discrete time Fourier transform properties, that if you have a complex time domain sequence and you take the conjugate of that, उसके z transform अगर आपके पास मौजूद है, तो in that case the double conjugate will be involved because x of z is a complex thing and z is complex as well, imaginary as well. So that's why it's x conjugate of z conjugate. Time domain sequence अगर आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या था? x कॉन्जुगेट ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा आपने कर दिया था, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वो जो नेगेटिव साइन था वो यहाँ पे कॉन्जुगेट बन के आपके पास आ रहा है, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज नॉट बीइंग चेंज्ड. टाइम रिवर्सल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अगर आप फ्लिप करते हैं अपने सिग्नल को तो यू विल बी फ्लिपिंग, इन फैक्ट z विल बी रिप्लेस्ड विद 1 over z. सपोज आपके पास एग्जाम्पल है या x of n जो है a raised to power minus n u of minus n. अब आपका सिग्नल जो है वो फ्लिप हुआ है. अब ये लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस है, n is replaced with minus n. अब आपको पता है कि x of n का जो सपोज y of n में सपोज करता हूं, that is a raised to power u of n. Now this x of n is in fact the flipped version of this y of n, and I know y of z क्या है? 1 over 1 minus a z inverse, where z is greater than a. Now using this property and the region of convergence, अगर आप इसे देखें तो x of z is क्या हो जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट उठाएं, that would be y of 1 over z या y of z inverse. तो जहां पे z है वहां 1 over z कर दें, तो जहां पे 1 over z है वो z हो जाएगा. So that is 1 over 1 minus a z, and in this case a z is lesser than 1 and z is lesser than 1 over a. यहाँ से भी आप डायरेक्टली उठा सकते थे. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे था z was greater than a, and you can directly say that the new region of convergence for x of z will be what? That would be z lesser than 1 over a. रिवर्स हो गया आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. क्वेश्चंस बेटा. आप इसी चीज को अगर सॉल्व करना चाहते हैं x of z के थ्रू, जो नॉर्मल बेसिक्स थे जो आप वहां से भी कर सकते हैं, बिकॉज x of z is equal to minus infinity to 0 a raised to power minus n z minus n, and that would be लिमिट्स को आप उल्टा कर दें, so a z raised to power n, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट infinity है, so you will be ending up 1 over 1 minus a z, where a z is lesser than 1 to make this series converge, and this would be giving you z lesser than 1 over a. You can use the properties, you can use the normal basic formula as well. जी अब्दुल मजीद साहब. जी सर. जी सर आप बताएं ना. जी सर चलें आगे. जी सर चले आगे सर. गुड. अच्छा जी.
Now, the most important property is now the convolution, because अच्छा जी. Okay. Now the convolution, again, you are familiar with it, that the time domain convolution is equivalent to frequency domain multiplication, and here we are in Z domain. And again, if you have the Z transform of x1 of n and x2 of n with the names x1 of z and x2 of z, and if you are interested in knowing the convolution of x1 of n and x2 of n, you will go into the Z domain and multiply those x1 of z and x2 of z. You will get the result, and then you will get the inverse Z transform to get the convolution in time domain. ठीक है. अब आपके पास दो sequences मौजूद हैं. One is a raised to power u of n, and the second sequence is x2 of n is u of n. x1 of n का Z transform क्या है? That is 1 over 1 minus a Z inverse, and Z is greater than a. You see that I am writing these regions of convergence, the every sequence, because that's important. क्योंकि मुझे Z ट्रांसफॉर्म अकेला कुछ नहीं बता रहा कि ये सीक्वेंस क्या है. मुझे Z ट्रांसफॉर्म इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के साथ बता रहा है कि मेरा सीक्वेंस ये है. ठीक है ना मेरे ताबा? यस सर. क्योंकि अकेला x1 ऑफ Z मुझे कुछ नहीं बता रहा. मुझे Z ग्रेटर देन a जो है ये मुझे बता रहा है कि दिस इज a raised to power n u of n. This is a right-handed sequence because of this thing. Similarly, x2 of n is equal to u of n. x2 of z is equal to 1 over 1 minus z inverse, and z is greater than 1. And now y of z अगर मुझे find out करना है, so that is 1 over 1 minus a z inverse, 1 minus z inverse. Important चीज ये है कि ROC of one signal, z is greater than a and z is greater than 1. That's important कि आपका जो composite signal होगा, जो convolved signal होगा, उसका जो region of convergence है, that would be the intersection of 1 and intersection of second. Now suppose this is my a. ठीक है? And because of this thing, ROC is outside this. And suppose this is this is 1, ये unit circle. Okay? For both of these signals, the region of convergence is, यानी इसके लिए क्या है? Right-handed है. मैं first sequence की बात कर रहा हूँ. And for the second sequence, it is again outside this. जो green है वो region of convergence है आपका इस sequence का, और जो red है वो इस sequence का है. And the region of convergence for the composite sequence will be, Z will be greater than G. Abdul Majid. 1. 1 sir. G will be greater than 1 because that's the place where we are getting intersection. I will come to it, लेकिन पहले इस question को complete कर लेते हैं. So what is this y of z? मुझे actually y of n चाहिए because that's the convolved signal. So y of z मैंने find out कर लिया. इसको मैंने partial fraction की, partial fraction के बाद y of z is equal to 1 over 1 minus a, 1 over 1 minus z inverse minus a over 1 minus a z inverse. Now अब मुझे y of n चाहिए, so I will be doing inverse z transform. Constant है 1 over 1 minus a, उसी तरह से रह जाएगा. 1 over 1 minus z inverse, that is u of n. इसका क्या होता है 1 over 1 minus a z inverse का? That is a raised to power n u of n. लेकिन मेरे पास एक additional a मौजूद था क्योंकि, so that's why it is a raised to power n plus 1 u of n, and we are convinced that the region of convergence is greater than, z is greater than 1. जी कोई question है बेटा इससे?
Okay. Now suppose in this case, in this particular example, we were assuming that A is lesser than 1. ऐसा ही है जी, A is lesser than 1. Suppose अगर A जो है वो greater than 1 है, उस केस में क्या होगा? Z will be, the region of convergence will be, Mehrtaba, Sir, Z is greater than A. E greater than A हो जाएगा उस केस में, अगर A बड़ा होगा तो, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है, अगर ऐसा कोई जोन नहीं है, सपोज ये सिचुएशन बनती है, एक सीक्वेंस लेफ्ट हैंडेड है, एक सीक्वेंस राइट हैंडेड है। सपोज आपका A वाला, इसी एग्जांपल को मैं ले लूं, इफ दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस u ऑफ -n मैं कर देता हूं, और जो 1 वाला सीक्वेंस है वो अपनी जगह पे है, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह से है, तो देन यू वुड बी सेइंग दैट द कन्वोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट फॉर these सिग्नल्स, ठीक है, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो दैट वुड बी द सिचुएशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखना है कि ROC जो है वो आपका कन्वर्ट सिग्नल का या जो फाइनल सिग्नल है उसका ROC कैसे जा रहा है। ये आपके पास अगेन एक एग्जांपल है, x1 of n is equal to 1 minus 2 1 और x2 of n is equal to 1 1 1 1 1, ये इस तरह से चल रहा है। नाउ x1 of z क्या हो जाएगा? 1 minus 2 z inverse plus z minus 2, ये x1 of n लिखा हुआ है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, सेम इंफॉर्मेशन। x1 of n is equal to 1 minus 2 1, we can write this as delta of n minus 2 delta of n minus 1 plus delta of n minus 2. We can write the same thing as in this form as well, ये जो आपके पास लिखी हुई है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है, 0 पे 1 है, 1 पे -2 है और 2 पे 1 है। तो जब तक आपके पास कोई एरो यहाँ पे लगा हुआ ना हो, इट मींस कि आपका जो 0 है, जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कहीं पे कोई एरो नहीं लगा हुआ, तो ये सिचुएशन है आपकी कि 0 आपका ये मौजूद है। एंड सिमिलरली इफ वी आर इंटरेस्टेड इन x2 ऑफ n, अगर आपने इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो x2 ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ n प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 2 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 3 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 4 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 5। और अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो दैट इज द फॉर्म, ऑल द इंपल्सेस आपकी चल रही हैं 0 से लेके 5 तक विद एम्पलीट्यूड 1। जी, any questions regarding understanding the notation of this question? सर ये जो हम ब्रैकेट्स में लिखते होते हैं, जिस तरह हमने लिखा है इंडेक्सिंग, सर ये तो इम्पल्स को लिखते हैं, यूनिट स्टेप को भी इस तरह हम देख सकते हैं सर इसमें? यूनिट स्टेप चूंकि इनफाइनाइट है तो फिर यूं कर दो, ऐसे कर दो तो लिख दो, क्योंकि वो कंटिन्यूस है ना, वो तो चल रहा है ना, इनफाइनाइट सिग्नल है ना, तो फिर ये तो फाइनाइट सिग्नल के लिए जनरली हम ये नोटेशन जो है वो, ठीक है। अगर सर वहाँ x1 की जगह जहाँ ऊपर डेल्टा n था, वहाँ उसकी जगह un होता और -2 डेल्टा n माइनस 1 की जगह un माइनस 1 होता, और फिर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, फिर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इस तरह, इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं, व्हाई नॉट, वो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जनरली ये नोटेशन फॉलो होती है फॉर फाइनाइट सिग्नल, इस तरह की नोटेशन, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये उस वक्त यूज होता है। अदरवाइज ये वाला नोटेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या ये वाली नोटेशन आप यूज करते हैं फॉर इनफाइनाइट सिग्नल, जनरली आप यूज कर लेते हैं। ठीक होगी बात? यस सर। ओके, तो x1 of z is equal to, अब आप डायरेक्टली यहाँ से उठाना चाहें, यहाँ से उठाना चाहें, यहाँ से उठाना चाहें, कोई भी तरीका हो, आप x1 of z लिख सकते हैं। तो x1 of z, डेल्टा ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या है? 1, 2 कांस्टेंट है तो उसी तरह से -2 आ गया। डेल्टा ऑफ n माइनस 1 का 1 ही है, लेकिन -1 की वजह से वो एक z इनवर्स वाला एलिमेंट जो है वो आ गया, टाइम डिले प्रॉपर्टी, प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 2 प्लस 1 इंटू टाइम डिले प्रॉपर्टी की वजह से z माइनस 2 आ गया।
Similarly, x2 of z आप लिखेंगे तो that would be 1 plus z inverse plus z minus 2 plus z minus 3 plus z minus 4 plus z minus 4 5 ये सारी डिले टर्म्स जो हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे, जिन तमाम का एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है. So either you have to take z transform, you can come from here, you can come from this notation, you can come from this notation. There should be no problem. ठीक है ना मेरे ताबा? Yes, sir. Okay. Now we are interested in knowing y of z. Y of z क्या है? The multiplication of x1 of z and x2 of z. आपने इनको multiply किया दो signals को, तो ultimately you have ended up with this thing. 1 minus z inverse minus z minus 6 plus z minus 7. So that's your signal. ये आपके पास z transform आ गया. अब इस z transform से आप इस notation को भी जा सकते हैं और आप इस notation को भी जा सकते हैं. तो अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूं तो ये 0 पे है. तो 1 के बाद अगली टर्म एक डिले के बाद -1. अब अगली टर्म जो है वो 4 के मजीद डिले के बाद है, -6 है. सो ऑल जीरोज, दीज जीरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको इस फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये वाला -1 यहाँ लिख देते हैं तो इस बात का मतलब है कि जब आप इसे कन्वर्ट करने के लिए जा रहे होंगे यू विल बी राइटिंग z-2, बट दिस इज नॉट द केस, इट इज z-6. In order to accommodate z-6, you will have to place 4 zeros. तो आपके पास ये सारे zeros हैं, उसके बाद -1 और फिर उसके बाद for z-7 you are placing 1 here. Similarly, you can come here as well. 1 z inverse के लिए delta of n-1, z-6 के लिए delta of n-6 और z-7 के लिए delta of n-7. जी बेटा, any questions? And you can write this thing as well. y of n जो है delta of n 0 पे minus delta of n-1, then you have 4 zeros, then delta of n-6 plus delta of n-7. So that's your output. ये आपका convoluted signal है, convolved signal है. जी मजीद बेटा, questions? No, sir. Any other person sitting in the class? किसी को कोई confusion, कोई question हो बेटा? सर पोल जीरो कंसोलेशन का पता करना है, तो वो क्या चीज है? ये अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सर वो लिखा हुआ था कि ये आरओसी को इफेक्ट करेगा जब हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. एक्चुअली पोल जीरो प्लॉट z ट्रांसफॉर्म तो इसीलिए ही होता है कि पोल जीरो प्लॉट को ही देखना है. सपोज x1 ऑफ z को देख रहे हो, x1 ऑफ z इज व्हाट? 1 minus 2 z इनवर्स प्लस z minus 2. कल आपसे बात की थी कि अगर आपने पोल जीरो प्लॉट देखना हो तो इसको z की पॉजिटिव पावर्स में लेके चलें. तो अगर मैं इस सिग्नल का देखना चाहता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं z² minus 2z plus 1 डिवाइडेड बाय z². लिख सकता हूं? यस सर. अच्छा, अब ये जो है ये पोलिनोमियल जो रखा हुआ है, पोलिनोमियल एंड z, इसको z plus 1 स्क्वायर है ये, समथिंग लाइक दैट. और इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट्स नॉट लोकेशन, इट इज एसोसिएटेड. यानी अगर मैं रूट्स फाइंड आउट करूंगा इस इक्वेशन के तो वो मुझे जीरोस बताएंगे, और इसके रूट्स तो वैसे ही नजर आ रहे हैं. तो ये पोल्स हैं मेरे. तो अगर मैं पोल जीरो प्लॉट बनाता हूं तो z इज इक्वल टू 0 पे मेरे दो पोल्स रखे हुए हैं, और यहाँ से जो मुझे रूट्स मिलेंगे वो मुझे बताएंगे मेरे जीरोस की लोकेशन क्या है. सो दैट वुड बी माय x1 ऑफ z का पूरा एनालिसिस जो है वो मेरे सामने आ जाएगा. सो अगर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं इस केस में, तो इस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज द होल z प्लेन एक्सेप्ट c इज इक्वल टू 0, बिकॉज पुटिंग 0 इनटू दिस, ये कल शायद आपको याद हो, ये देख रहे हैं आप, राइट हैंडेड फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस था, तो हमने कहा था एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0. अगर लेफ्ट हैंडेड से सीक्वेंस है, अगर एक भी टर्म यहाँ पे आ जाती तो इन दैट केस ये टू साइडेड सीक्वेंस हो जाता. तो हम कहते कि एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो ये सारी सिचुएशन है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं z ट्रांसफॉर्म में तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? सर मैंने पोल जीरो कैंसिलेशन का पता किया, तो वो कैसे होगी और उसका इफेक्ट क्या होगा आरओसी पे? वो आगे चल के देख लेते हैं. अभी फिलहाल पोल जीरो कैंसिलेशन की बात नहीं हो रही, अभी उसको छोड़ दें. ठीक है, अगर सपोज इस तरह की सिचुएशन है z³ minus z² और
सपोज नीचे z स्क्वायर है, सपोज दिस इज द सिचुएशन, या z4 है पॉसिबली, कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, z स्क्वायर z-1 लिख सकता हूँ ऊपर वाली Yes, टर्म sir. को, एंड नीचे वाली टर्म z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो इनफैक्ट ये जो कैंसलिंग आप इधर कर रहे हैं, दैट इज इनफैक्ट कैंसलेशन ऑफ द जीरोस एंड पोल्स। वी विल लुक इनटू इट जब इस जगह पे आएंगे। तो राइट नाउ अभी आप इसको, जो चीजें हम देख रहे हैं, आप इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आप कंप्लीट करते जाएं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके पास न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर एच एफ जी की टर्म में है, जो न्यूमरेटर है these are associated with the zeros, the polynomial in the numerator is associated with the zeros, of course the roots of that polynomial, or the roots of the polynomial in denominator are associated with the zeros and poles. There are certain situations जहाँ पे एक ही लोकेशन पे zeros and poles आ जाते हैं। तो अगर जीरो यहाँ पे एक जीरो हो और दो पोल्स हो तो क्या होगा, एक जीरो एक पोल के साथ कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी एंडिंग अप विद सिंगल पोल देयर। ठीक है, जनरली जो सिंगल जो जीरोस पे ओरिजिन पोल्स हैं वो कोई इफेक्ट आपका नहीं कर रहे होते आपके मैग्नीट्यूड रिस्पांस में या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन चैप्टर नंबर 5, सो डोंट वरी। ठीक हो गई बात, Okay. चलें आगे। Okay, sir. ओके, अच्छा जी, नाउ इनवर्स री ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा तो आपने फ्लेवर आपको मिल ही गया है, बट फॉर्मली देख लेते हैं that there are certain methods to find out how to get the inverse Z transform. The more the complex method is by contour integral of the inverse transform definition, which is not present in your book. If you are interested, you can see PROCIS की जो digital signal processing है, you can see it from there, but not recommended. ये बाकी आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन मौजूद हैं, मेथड्स जो कि आपकी बुक में हैं, बाय इंस्पेक्शन, बिकॉज ये जो आपने काम किया है ये बाय इंस्पेक्शन किया है, ये आपने इंस्पेक्शन की है और आपको पता है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये आपने बाय इंस्पेक्शन किया है, 1/1 माइनस जी इनवर्स इज यू ऑफ एन, a/1 माइनस a जी इनवर्स इज an+1 u of n, बिकॉज यू नो द बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स, और उन बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स के थ्रू आपके पास ये मौजूद है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी मौजूद है, तो यू कैन एंड अप विद द टाइम डोमेन सीक्वेंस। सो दैट्स बाय इंस्पेक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी किया है, एंड बाय पावर सीरीज एक्सपेंशन। सो लेट्स सी एग्जांपल्स हैं आपके पास। सो x of z is equal to 1/1 minus 1/2 z inverse. नाउ आपको पता है कि अगर आपके पास ये गिवन है तो यू विल एंड अप विद टाइम डोमेन सीक्वेंसेस a raised to power n u of n if z is greater than a. In that case इसका जो z ट्रांसफर टाइम डोमेन सीक्वेंस है वो ये होगा। यहाँ पे गिवन है यहाँ पे आपके पास z is greater than 1/2 गिवन है, तो a raised to अपना x of n क्या हो जाएगा अब्दुल मजीद? सर -1/2 की पावर n। माइनस नहीं है बेटा, ये बाय सही डेफिनेशन है सही माइनस। सही इट इज 1/2 पावर n u of u n। of n, ठीक है। और इसी तरह से अब आपके पास ये चीज मौजूद है जी। मेहरताबा प्लीज बताइए इसका क्या करें। सर इसमें पहले इसको z इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। जबरदस्त। So it's important for everyone sitting in this class that we have the transform pairs in this format. 1/1 minus a z inverse की फॉर्म में है। So सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो आपके पास given problem है that must be transformed into the format already known. So x of z can be written as z inverse over 1 minus 0.25 z inverse, ऐसा ही है, and z is greater than 1/4 is indicating that it's a right-handed sequence जब आप इसे बनाएंगे। अब हम इसका x1 of n लिखना चाहते हैं। अच्छा जी, x of n लिखना चाहते हैं तो 1/1 minus 0.5 z inverse का तो होता है 0.25 raised to power n u of n।
u of n किस वजह से? Because z is greater than 1 over 4. But right now there is another term is present here, and that is z inverse. So because of that z inverse, a delay term will be introduced in your time domain sequence, which is -1, and this would be replaced with u of n minus 1. जी बेटा, क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा जी, okay ji. X of z is given and we have to find out x of n, and of course you will have to do the partial fraction क्योंकि आप individual terms चाहते हैं अपने existing जो pairs हैं आपके z transform के उनको use करने के लिए, और the most important transform pair is a raised to power n u of n 1 over 1 minus a z inverse and minus a raised to power n u of minus n minus 1. इसका भी z transform 1 over 1 minus a z inverse है, but in this case z is greater than a and in this case z is lesser than a. ये चीज हर वक्त आपके दिमाग में होनी चाहिए. अच्छा जी, अब आपने partial fraction की and you have ended up with this thing. इस केस में क्या हो रहा है? The region of convergence is, क्योंकि ये देखें आपको गिवन क्या है, कंपोजिट सिग्नल जो है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है 1/2. इस बात का मतलब क्या हुआ, जरा गौर करेंगे आप? इस बात का क्या मतलब हुआ z is greater than 1/2? इस बात का मतलब ये है कि 1/2 क्योंकि बड़ा है 1/4 से, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके दोनों सीक्वेंसेस जो हैं टाइम डोमेन सीक्वेंस वो राइट हैंडेड हैं, बिकॉज 1/4 जो है वो ये 1/4 पे है, दूसरा जो है वो 1/2 पे है. अगर तो ये सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है और कन्वर्जेंस आपको दे रहा है z is greater than 1/2, the only possibility is that both of the sequences are right handed. ऐसे है अब्दुल मजीद, कन्विंस्ड? Yes, sir. 1/4 से बड़ा वो भी राइट हैंडेड होगा, 1/2 से बड़ा, ये दोनों राइट हैंडेड होंगे. उसी सूरत में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास ये आ सकता है. सो आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन इस जगह को देख के मैंने फैसला किया कि बोथ ऑफ द राइट हैंडेड सीक्वेंसेस, सो आई विल बी राइटिंग माइनस, ये माइनस इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से नहीं है, 1/4 raised to power n u of n plus 2 into 1/2 raised to power n u of n. So that's very important कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देख के आपने फैसला किया है कि दोनों जो आपके सीक्वेंसेस हैं वो राइट हैंडेड सीक्वेंसेस हैं. एग्रीड? क्वेश्चंस? सर ये जो भी आपने इरेज किया है, इसमें जो सेकंड वाला था उसमें आपने u of minus n minus 1 लिखा था, तो उससे टाइम शिफ्ट क्यों नहीं आया? बेटा ये अगर आपको याद हो, ये अगर आप इसको देखें, ये आपकी उसी में मौजूद है. a raised to power n u of n का क्या था? 1/1 minus a z inverse
but z was greater than a. और इस सीक्वेंस का क्या है, अगले वाले का देखते हैं, माइनस a raised to power u of minus n minus 1. इस केस में भी आपका जो z ट्रांसफॉर्म है that is 1 over 1 minus a z inverse, but z is lesser than a. ये तो पहले दिन हमने z ट्रांसफॉर्म में कर लिया था, याद है ना? यस सर। ये राइट साइड पे सारी इसकी जो कैलकुलेशन है वो सारी यहाँ पे गिवन, और ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल, कैसे u of n था, u of minus n कैसे बना, u of minus n minus 1 कैसे बना, फिर minus a raised to power n u of minus n minus 1 for a is greater than 1 and फिर a is lesser than 1. ठीक है ना? ये सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं. Have I answered your question बेटा? यस सर। अच्छा जी. नाउ पावर सीरीज एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो x of z अगर आपको गिवन है एंड इट्स बेसिकली अ फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस सीक्वेंस, इसमें आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो कोई भी नहीं है, सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग all the terms with each other, so it's z square minus 1 over 2z, and these two terms will end up into 1 minus z minus 2, and final expression is z square minus 1 over 2z minus 1 plus 1 over 2z minus 1. x of n क्या हो जाएगा आपका? That is, अगर मैं इसे इस टर्म, it is 1 minus 1 over 2 minus 1 1 over 2, but ये मैंने एरो लगाया हुआ है, this is indicating that my zero index is at this level, -1 पे आपका zero index है. ये मेरे पास एडवांस्ड सिग्नल्स हैं, ये डिलेड सिग्नल है, तो ये सिचुएशन है. एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, दैट वुड बी डेल्टा ऑफ n plus 2. कहाँ से आ रहा है? इट इज इन फैक्ट दिस थिंग 1 into z plus z square, 1 का डेल्टा ऑफ n और स्क्वायर की वजह से plus 2. बेटा जिसने माइक ऑन किया है अभी वो प्लीज बंद कर दे. -1 over 2, that is there, -1 over 2 in fact delta of n, and z की वजह से वो +1 आ गया, z की पावर 1 की वजह से. -1 is in fact delta of n, +1 over 2 will come as it is, और -1 की वजह से ये -1 आपको नजर आ रहा है. Questions please. जी मजीद बेटा, any question? No, sir. अच्छा जी. There might be certain situations कि आपके पास जो polynomial है, जो numerator का polynomial है, if its degree is higher than the denominator, in that case you will go through the process of long division and you will end up in this form. आपके पास इस तरह की चीज आ जाएगी. अगर आपका पोलिनोमियल की डिग्री जो है यहाँ हायर है तो आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे एंड आपके पास ये चीज आ गई, x of z is equal to 2.25 plus 0.5 z inverse minus this, and this thing can be further simplified in this form, and then this particularly this term can be simplified through partial fractions, and you will be ending okay. So the same thing, ये जो आपके पास चीज थी x of z, now going through this process of long division, simplification, यानी इसके रूट्स फाइंड आउट करने के बाद
और फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद यू विल बी एंडिंग अप with this expression and you have to come at this level because जो भाई पूछ रहे थे कि zeros and poles की situation पूछ रहे थे, इनफैक्ट अगर आपको आप सिंप्लीफाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके जीरोस कहाँ रखे हुए हैं और पोल्स कहाँ पे रखे हुए हैं. बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द टाइम डोमेन सीक्वेंसेस. तो जरा गौर करिए, मुझे अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, ये x of z गिवन था एंड देयर इज नो ROC गिवन नहीं है, इस केस में आई विल हैव टू सॉल्व 3 सॉल्यूशंस फॉर दैट बिकॉज मुझे नहीं पता कौन सा सीक्वेंस जो है वो राइट हैंडेड है इन दोनों से एसोसिएटेड सीक्वेंसेस से. इनके बारे में वैसे भी अंदाजा हो रहा है 2.25 जो है दैट इज द होल z plane इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. इसकी वजह से क्या है, z is equal to 0 जो है, except z is equal to 0 everything is region of convergence. ठीक, लेकिन यहाँ पे मसला है, मुझे देखना पड़ेगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड है या मेरा उससे ROC जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है. चलें, अज्यूम कर रहे हैं इफ ROC इज लेसर देन z इज लेसर देन 2. मतलब क्या हुआ, मतलब ये है ये मेरा इसकी वजह से पोल मेरा रखा हुआ है 2 पे, z माइनस 2 पे एक पोल है, z इज इक्वल टू 2 पे. सो एक पोल पड़ा हुआ है मेरा, सपोज दिस इज 2. और दिस इज z माइनस 1 पे एक पोल पड़ा हुआ है, दिस इज एक पोल यहाँ पे है एंड दिस इज सेइंग दैट z इज ग्रेटर देन 2. z इज ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हुआ, अभी एक एग्जांपल आपने इसी से रिलेटेड की थी. इस बात का मतलब है कि अब आपका सीक्वेंस जो है वो क्या है, राइट साइडेड. दोनों सीक्वेंसेस मेरे राइट हैंडेड हैं. सो 2.25 doesn't make any difference. कोई भी सिचुएशन हो, that would be 2.25 डेल्टा ऑफ n, that would be 2.5 डेल्टा ऑफ n माइनस 1. इनका कोई मसला नहीं है, असल इशू इनका है. सो क्योंकि दोनों सीक्वेंस में एज्यूम कर चुका हूं by this ROC which is greater than 2 and I have assumed that both of the sequences are right handed, so it would be -8. अब 1/1 माइनस z इनवर्स का क्या हो जाएगा, that would be u of n. फिर ये भी राइट हैंडेड है तो 6.75 2 raised to power n u of n. Any questions regarding this? सर अभी ब्रेक ना कर ले. आप कौन साहब हैं बेटा, नाम क्या आपका? उसामा सर. उसामा, आप सीआर हैं? जी सर. तो इतने परेशान होने की क्या बात है, आप हैं सीआर तो बताएं सीआर हैं, बस ये खत्म हो रही है बेटा. ये दिस इज 50th और 50th स्लाइड, 50 स्लाइड, सो डोंट वरी, कर लेते हैं. कोई इतने परेशान क्यों, खैर तो थक गए हो? ओके. सॉरी. थक गए हो? जी सर. चलो, थकने की तो कम से कम तुमने क्वेश्चन आवाज उठाई, वैसे तो बोलते नहीं हो. एनीवेज, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेक करने के बाद वापस आते हैं तो आपका क्विज कर लेंगे. ठीक होगी बात? शामा भाई आप ठीक तो है बोलो. ठीक है सर. ठीक. Okay. Now we are assuming that z is between 1 and 2. अब यहाँ से क्या नजर आ रहा है, z is greater than 1, z is lesser than 2. इस बात का मतलब है कि ये जो आपका ये वाला सीक्वेंस है जो कि पॉइंट इससे रिलेटेड है, बिकॉज z is greater than 1, पोल आपका इस 1 पे यहाँ पड़ा हुआ है. सो 1 वाला सिग्नल जो है वो तो राइट हैंडेड है बिकॉज ग्रेटर देन 1 है, एंड लेसर देन 2 का मतलब है कि आपके पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो किस तरह का होगा. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1 वाला है, ये तो राइट हैंडेड है एंड आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विच इज गिवन टू मी. ये 1 वाला है और 2 वाला क्या है, ये 2 वाला है, इनसाइड है. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी
ये जो रेड आपको जोन नजर आ रहा है बिटवीन 1 and 2, दैट वुड बी योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और इस केस में अगर मुझे कहा जाए कि मुझे ये इक्वेशन गिवन है x of z एंड बाय इंस्पेक्शन आई हैव टू नो, अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है तो व्हाट वुड बी माय टाइम डोमेन सीक्वेंस, दैट वुड बी 2.25 डेल्टा ऑफ n प्लस 0.5 डेल्टा ऑफ n माइनस 1। क्योंकि ये राइट हैंडेड है सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखें सेम है, -8 u of n, बट दिस टाइम ये जो है ये लेफ्ट हैंडेड है एंड वी नो दैट दिस वुड बी -6.75 2 raised to power n u of -n minus 1. So because of left-handed nature of this portion, ये आपके पास left-handed आ गया। Questions please. अब्दुल मजीद, जी सर। क्लियर है? यस सर। मेरे तबा बेटा ठीक है? Yes, sir. Okay. And if it is said that z is lesser than 1, इस बात का मतलब ये है कि both of the sequences, यानी 1 वाला भी अंदर की तरफ आ रहा है और 2 वाला भी अंदर की तरफ आ रहा है, and in that case the intersection जो है वो आपकी कहाँ पे होगी? इस जोन में होगी, lesser than 1 में, and you will be saying ये 2.25 डेल्टा ऑफ n उसी तरह से प्लस 0.5 डेल्टा ऑफ n माइनस 1। नाउ दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस एज वेल, सो ये माइनस जो है ये माइनस इनटू -8 दैट वुड बी प्लस u ऑफ -n minus 1 minus 6.75 2 raised to power n u of -n minus 1. So whenever you will be given some z transforms by inspection, because you have some transform pairs available with you, and the most important transform pairs, because every time you will be using these transform pairs, a raised to power n u of n, it is 1 over 1 minus a z inverse, but the important thing is that z is greater than a, and minus a raised to power n u of -n minus 1 over 1 minus a z inverse. Both the cases the z transforms are same, the only difference is that your regions of convergence जो है वो आपके रिवर्स हुए हैं, वो चेंज हैं। So just by remembering these two transform pairs, mostly you can solve everything and some properties of the z transform. Your questions please. उसामा, any question बेटा? थकावट से अलहदा हो के जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें पढ़ाई पे। उसामा, are you sitting? Are you on नहीं the सर, break? क्वेश्चंस नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। ओके सर जी बेटा, सर आवाज आ रही? प्लीज। जी सर मैं अभी मुझे आ रही है। सर अभी तो सर 2 सीक्वेंसेस तो इनके आरओसी को हमने ब्रेक करके बना लिया, कंडीशंस 3 बनी। अगर ये ज्यादा होते तो फिर ये काम तो ज्यादा होता तो इसी तरह से ब्रेक करते जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ओके बिल्कुल इसी तरह से आप ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने का मेन रीजन जो है वो यही है कि आपके पास जो बेसिक पेयर्स हैं आप इनको यूज करना चाह रहे हैं, आप इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल की थी हमने, ये वाली, देखिए ये इस फॉर्म में नहीं थी, 1 over 1 minus a z इनवर्स की फॉर्म में नहीं थी। तो पहले आपने ये काम किया कि इसको z इनवर्स की फॉर्म में लेके आते हैं, और इस z इनवर्स की फॉर्म में लाते हुए आपको एक और z इनवर्स की टर्म जो है ये आपको मिल गई। अब ये z इनवर्स की टर्म जो है ये आपको 1 over 1 minus 0.25 z इनवर्स ये आपकी इस फॉर्म में आ गई, लेकिन ये z इनवर्स जो है अब आप अपनी टाइम डिले प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करते हुए आपने n-1 का फैक्टर लगा दिया। सो इंटेलिजेंटली खेलना है, ब्रेक भी करना है, प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है, जो गिवन ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं उनको भी यूज करना है, एंड यू हैव टू एंड अप विद सर्टेन सॉल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको देखते हुए
कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा? यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और बंदा जो जाग रहा हो और सवाल कोई पूछना चाह रहा हो तो मोस्ट वेलकम। नो क्वेश्चन? सर ये स्लाइड से नहीं है, वो स्लाइड 17 से एक क्वेश्चन था। स्लाइड 17 बेटा? यस सर, एक डायग्राम छोटी सी है, उसकी समझ नहीं आ रही थी। कोई बात। जी बेटा बोले। जो लेफ्ट साइड पे आपने ये डायग्राम लास्ट में बनाई थी कि ए ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन 1 के लिए, सर ये डायग्राम ये वाली? यस सर, ये वाली लास्ट वाली जो है। बेटा जिसपे कर्सर मूव कर रहा है। ओके, तो कंटेक्स्ट में कि सिग्नल जो है मेरा दैट इज ए रेज माइनस एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। यहाँ तक तो क्लियर थी ना बात कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे? यस सर, ठीक है, यस ये सर, शिफ्ट माइनस एन, अब माइनस ए रेज टू पावर एन आ गया। अगर ए ग्रेटर देन 1 है, सपोज सैंपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन 1, सपोज ए इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, तो खैर माइनस की वजह से वो नीचे साइड है उसकी, वो तो हो गया, माइनस को छोड़ देते हैं। अब 2 रेज टू पावर एन, एन क्या है बेटा? एन क्या है? अगर मैं Two है ए की सर। वैल्यू ए की वैल्यू -1 है, 2 है, -3 है, -4 है, -5, ऐसे ही है ना। अगर ए मैं Yes, रखता sir. हूँ सपोज 2, तो पहली टर्म क्या आ जाएगी? -2 रेज टू पावर 1, सो इट वुड बी 2 रेज टू पावर -1, 1/2 हो जाएगा ये। Yes, sir. 2 रेज टू पावर -1 है ना बेटा? Yes, sir. इंडेक्स तो चल रहा है -1, -2, -3, -4, इंडेक्स ऐसे चल रहा है ना, लेफ्ट साइड पे चल रहा है। तो 2 रेज टू पावर -1 विल बी 1/2। Yes, sir. ये 1/2 टर्म आ गई। अगला क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/1/4 से कम आ जाएगी 1/4। 1/4 हो जाएगा। अगली टर्म क्या आ जाएगी? 2 रेज टू पावर -3 1/8 हो जाएगी। तो ये ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है। और अगर a इज लेसर देन 1 है, सपोज a इज 0.5, तो क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर 0.5 रेज टू पावर -1, 1/0.5, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से आप 0.5 रेज टू पावर -2, इट इज 1/0.25, 1/0.25 will be 4, so 2, 4, 8, ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। Have I answered your question बेटा? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Any other question? No, sir. So this is the end of chapter number 3, and the assignment number 2 is all the odd problems, basic problems जो आपके chapter end पे हैं, basic problems, odd problems आप solve करेंगे, and you don't need to submit it. आप गुनाहगार ना हो, मुझे भी ना करें, और I will take assignment quiz जो है वो मैं आपका एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? CR क्लियर है बात? असाइनमेंट नंबर 2 जो है दैट इज the odd problems, odd basic problems of chapter number 3. Agreed? ठीक है सर।